A wonderful good morning to my wonderful Patans. So I am back with your computer class and I hope you all are enjoying your computer classes. So yesterday we have finished the chapter 5 more on MS Paint, and today we will be starting the new chapter, that is chapter 7, Introduction to Multimedia. And along with it I am sending you the worksheet of chapter 4. So just revise the chapter 4 and do the worksheet in your computer notebook. Okay. So now let's start the chapter 7, Introduction to Multimedia. So this is chapter 7, Introduction to Multimedia, and the topics which we will cover today are introduction, installing a multimedia CD or DVD, and using the multimedia software. Okay. So introduction first, what is multimedia? Multimedia होता क्या है? So as its name, multi means एक से ज़्यादा, okay, more than one, and media is the plural of medium. तो जब बहुत सारे मीडियम हम यूज़ करते हैं, a number of mediums used to कन्वे अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन. कन्वे करना मीन्स लाइक आप व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हो, वीडियो सेंड करते हो, या कोई इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल की तरफ से सेंड होती है. सो वो क्या है? दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ मल्टीमीडिया. वो भी एक टाइप का मीडियम है. ओके, जिससे हम अपने मैसेज या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं, कन्वे करते हैं. सो मल्टीमीडिया कैन बी डिफाइंड एज एन एप्लीकेशन. Multimedia can be defined as an application that is combination of many media forms. So multimedia को हम define कर सकते हैं एक ऐसी application जो combination है बहुत सारे media की हो. Okay. Media forms means like text, sound, video, still images, graphics, animations, which are used to convey the information. Okay, like you watch your favorite cartoons, you listen to songs, play games. Okay, so these are also what? Multimedia. वो भी क्या होता है? मल्टीमीडिया होता है. Okay, like I'll show you here. You can see multimedia consists of what? मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन, ऑडियो, ग्राफिक्स. सो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया. ये सब मल्टीमीडिया का पार्ट है. यू कैन सी हेयर, अगर हम मीडिया की बात करें देन इट इज़ रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, मैगजीन्स. ये सब क्या हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ मीडियम जिनसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या हम कोई इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मीडिया अवेलेबल टू अस. ओके, नाउ यू कैन सी हेयर मल्टी मीन्स मोर देन वन. लाइक आपने यू मे हैव सीन द buildings having a number of flats. Okay, तो वो क्या होता है? It is like an example of multi. Multi means एक से ज़्यादा. Like we know that computer is a multitasking device. So हम multitasking क्या होता है कि जब हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा कोई भी वर्क कर सकते हैं. लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप कर रहे हैं या MS पेंट में आप ड्राइंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे आप
सॉन्ग्स सुन सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मल्टीटास्किंग, कि एक साथ आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हो कंप्यूटर पे. नाउ मीडिया इज़ द प्लूरल ऑफ योर मीडियम एंड कैन मीन वेज ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन. सो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं. सो दैट इज़ द मीडिया. एंड मीडिया ऑफनली हम यूज़ करते हैं टीवी के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए. ओके. So there are number of fields where multimedia is used. बिजनेस में भी यूज़ होता है, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, होम, पब्लिक प्लेसेस. Nowadays it is used everywhere. Okay, like I'll show you. You can see in your book on page number 66. Nowadays multimedia is used for many purpose. एजुकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए. जो आप एड्स देखते हैं टीवी में, तो वो क्या होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ योर मल्टीमीडिया. वो भी मल्टीमीडिया का ही एग्जाम्पल है. एंटरटेनमेंट जो आप कार्टून्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, दैट इज़ ऑल ड्यू टू मल्टीमीडिया. प्लेइंग गेम्स, you used to play the games on computer, so that is also a part of multimedia. Making movies and game software. So जो movies बनाते हैं, animated movies like you have seen the Jungle Book or Frozen, so these all are example of your multimedia. Okay, now a complete multimedia system should have following items. अगर हम एक पूरे मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करें तो उसमें हमारे पास ये आइटम्स अवेलेबल होने चाहिए. द आइटम्स विच यू आर सीइंग हियर, यू मस्ट हैव अ CD रोम ड्राइव, जॉयस्टिक जो कि आप गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हो, माइक्रोफोन आप किस लिए यूज़ करते हो, इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड योर वॉइस इन द कंप्यूटर, speakers to listen the voice from the computer, then printer, cloud printer, headphones, sound card, scanner. So these all are the parts of your multimedia system. तो ये सभी जो हैं आइटम्स वो मल्टीमीडिया सिस्टम के पार्ट हैं. ओके, सो जब ये हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं, इनको जब हम कंबाइन कर लेंगे, सो दैट इज़ आवर मल्टीमीडिया सिस्टम. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ इंस्टॉलिंग अ मल्टीमीडिया CD और DVD. सो कोई भी मल्टीमीडिया CD और DVD, लाइक आप कोई किसी भी गेम की CD लेके आते हो और वो आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करोगे, यू विल यूज़ द CD ड्राइव में आप डालोगे. एंड दोज हु आर हैविंग द लैपटॉप, you can see here, this is your CD drive. यहाँ पे आप अपनी CD place करेंगे, put it inside, and when you will put it inside, you have to click on this PC icon. You can see here this PC icon, इस पे आप डबल क्लिक करोगे, then it will open. जैसे ही डबल क्लिक किया आपने, आप यहाँ देख सकते हो आपका, एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 3 and 4, हमारा जो दिस PC आइकन है उसमें क्या होता है, इट शो यू ऑल द कंटेंट, ऑल द ड्राइव्स विच आर देयर इन योर कंप्यूटर सिस्टम और इन योर लैपटॉप. आपके लैपटॉप में जितने भी ड्राइव्स होते हैं, ड्राइव्स मीन्स टू स्टोर द थिंग्स, मतलब इट इंक्रीज द मेमोरी स्पेस ऑफ योर लैपटॉप और कंप्यूटर. लाइक यू कैन सी हेयर, यहाँ पे सिर्फ C ड्राइव है एंड दिस इज़ DVD राइटर जो मैंने अभी आपको दिखाया. सो दिस इज़ योर DVD राइटर. आप यहाँ पे CD को प्लेस करेंगे, यू विल पुट हेयर
and put it inside. After that you will click on the this PC icon, डबल क्लिक करेंगे, it will open और यहाँ पे आपको आपकी CD विद नेम अवेलेबल होगी इस ड्राइव में एंड यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट. अब जैसे ही डबल क्लिक करेंगे जो भी आपके CD में कंटेंट है, जो भी उसमें सेटअप है गेम का या किसी सॉफ्टवेयर का, इट विल ओपन. लाइक अभी मैं आपको डाउनलोड्स में दिखा देती हूँ. लाइक सी हेयर, डाउनलोड में आपको यहाँ पे टक्स पेंट का सेटअप दिख रहा है. दिस इज़ टक्स पेंट सेटअप. तो अगर सिमिलरली आप अगर ये सेम सेटअप आपका एक CD में होता तो CD में भी जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे इस तरह से जो भी CD के अंदर कंटेंट होगा वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा. ओके और जो सेटअप होगा उस पर आपको डबल क्लिक करना है. लाइक यहाँ पे टक्स पेंट स्टैम्प्स का सेटअप है और टक्स पेंट का सेटअप है. तो आप जब इस पे डबल क्लिक करेंगे, लाइक आई विल शो यू, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देन इट विल आस्क यू, ये आपसे पूछेगा कि आप अपने कंप्यूटर पे सिस्टम पे चेंजेस करना चाहते हो विद दिस सॉफ्टवेयर. तो आपको येस पे क्लिक करना है. जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो जो भी पर्टिकुलर आपका गेम या सेटअप है अकॉर्डिंगली उसका सेटअप आपके सामने आएगा. लाइक इसमें लैंग्वेज आ रहा है इंग्लिश, देन ओके. फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है. आपको यहाँ पे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है. कंडीशंस जो भी होंगी किसी भी गेम के लिए या किसी सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है, आप उन कंडीशंस को, एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे. देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, then again next, then again next. okay, this way you have to install और लास्ट में आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल. सी सो सिमिलरली जब आप कोई भी गेम इंस्टॉल करेंगे तो ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप मूव करना है और इंस्टॉल का जब ऑप्शन आएगा आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है एंड उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी. ओके सो इसी तरह आप अपनी बुक में कोई भी DVD, जैसे मैंने बताया, आप सबसे पहले DVD राइटर में डालेंगे. उसके बाद आप दिस PC आइकन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिस PC आइकन पे डबल क्लिक करेंगे. यहाँ पे आपको अपनी CD में जो भी मैटर होगा वो यहाँ पे आपकी CD विजिबल होगी आपको. जब आप डबल क्लिक करेंगे तो जो भी CD के अंदर आपका कंटेंट है, जो भी सेटअप है सॉफ्टवेयर का या किसी गेम से रिलेटेड, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे. यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर. और जैसे ही इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा. लाइक जैसे हमने अभी जब हमने टक्स पेंट किया था तो हमने टक्स पेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था. तो आप वंस हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल ऐप्स. ऑल ऐप्स में आपके सारे जो भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे वो आपको अवेलेबल होंगे और जो आपका करंटली बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर होगा वो अलग से हाईलाइट होगा जो आपने उसी टाइम पे इंस्टॉल किया है. सो लाइक हमने टक्स पेंट किया था तो हमारा टक्स पेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पे है. ओके सो इट विल बी हाईलाइटेड डिफरेंटली, ये अलग से हाईलाइट हो जाता है जो हम न्यूली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. एंड देन यू कैन ओपन इट फ्रॉम देयर. जो भी आपने सॉफ्टवेयर या गेम इंस्टॉल किया है आप उसको वहाँ से ओपन कर सकते हैं. यू हैव टू जस्ट क्लिक एंड इट विल ओपन एंड you can use it. Okay, so you have to read the chapter till here using multimedia software. Okay, the next topic will cover in next class. This window media player will cover in the next class. It's a small chapter. Okay, so now come to the worksheet which you have to do. So this is the worksheet of chapter 4. So first is tick the correct answer.
So first one, dash title display the weather forecast. So you have three options. तो कौन सी टाइल आपका वेदर फोरकास्ट को डिस्प्ले करती है, दैट यू हैव टू टेल. सेकेंड इज़ व्हेन यू डिलीट अ फाइल इट इज़ मूव टू डैश. तो जब आप कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है. यू हैव द ऑप्शंस डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बीन, डाउनलोड्स. थर्ड इज़ डैश इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एनी फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन. सो किसी भी फाइल, फोल्डर और एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं. यू हैव द थ्री ऑप्शंस आइकन, स्टाइल्स, पॉइंटर. फोर्थ इज डैश आइकन अलाउस अस टू ऐड मल्टीपल डेस्कटॉप्स. सो मल्टीपल डेस्कटॉप्स आप कौन से आइकन से ऐड करते हैं. यू हैव द थ्री ऑप्शंस, चूज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज विंडोज़ 10 वर्क्स वेल विद लैपटॉप, पीसी एज वेल एज. सो विंडोज़ 10 लैपटॉप, पीसी के अलावा और किस पे अच्छे से वर्क करती है, दैट यू हैव टू राइट. सेकेंड इज़ अरेंजिंग आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड. तो जब हम डेस्कटॉप पे आइकन्स को अरेंज करते हैं, व्हाट वी कॉल इट. थर्ड इज़ प्रोग्राम्स इन ऑल एप्स आर अरेंज्ड इन डैश ऑर्डर. तो ऑल एप्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितने भी प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में होते हैं वो किस ऑर्डर में अरेंज होते हैं, दैट यू हैव टू राइट. नाउ ट्रू फॉल्स. फर्स्ट इज कैलेंडर टाइल इज यूज टू ऐड कॉन्टैक्ट्स. सो इज इट स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स. सेकेंड, शट डाउन ऑप्शन इज़ यूज टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर. शट डाउन ऑप्शन हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को टर्न ऑफ करने के लिए. You have to tell it's true or false. Third is we can change the size of icon on the desktop. So हम icons का size change कर सकते हैं. Is it true or false? That you have to tell. Now next is answer the following question. First is what all you can do from the desktop. आप desktop से क्या क्या कर सकते हैं. ओके, सो ये आपको लिखना. सेकेंड इज राइट स्टेप्स टू पिन टाइल्स टू स्टार्ट मेन्यू. तो आपको स्टेप्स लिखने हैं किसी भी टाइल को पिन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू पे. व्हाट आर द स्टेप्स, वो आपको लिखने हैं. सो दिस वर्कशीट यू हैव टू डू इन योर कंप्यूटर नोटबुक एंड वंस रिवाइज द चैप्टर, गो थ्रू द चैप्टर बिफोर डूइंग द वर्कशीट. ओके. And if you have any problem, any doubt related to the worksheet, related to the chapter 4, you can ask. Okay. So till then, take care. We'll meet in the next class. Bye.